આ 15 દુઆઓ છે અને પછી 3 દુઆઓ છે છેલ્લે કે યા અલ્લાહ તું મેરે નૂર में इजाफा कर. તો હવે જે નૂર અંદર ઉતરવા લાગ્યું છે આજે 15 દુઆઓથી, કાનોથી, આંખોથી, સમસ્ત આપણા જીસમના અંદર, ખ્યાલના અંદર, આપણા લોહીના અંદર, ગોટના અંદર, હડ્ડીઓના અંદર, આગળ પાછળ ઉપર નીચે દરેક જગ્યાએ હવે નૂર ઉતરવા લાગ્યું છે. બરાબર? તો એના અંદર ઇજાફો કર, એના અંદર વધારો કર. તો હવે જે આટલી દુઆઓ માગીને એ પ્રમાણે કાર્ય કરવામાં આવ્યું તો એ નૂરનો વરસાદ થવા લાગ્યો છે. હવે એને એની બુલંદી પર લઈ જા એવી દુઆ માગી. એના પછી દુઆ છે કે યા અલ્લાહ તું મેરી નિયામતો में इजाफा कर. તો આપણે કલામ મુબારકના 37 કલામ રૂહાની સમજણના કલામ મુબારકના અંદર વાંચીએ છીએ કે 14 તબક લગ જો નિયામત તો સબ જાણો દુનિયા પના. તો નિયામત શું છે એના ઉપર ખુદા છે, કારણ કે નિયામત નો આપવા વાળો જે ધણી છે મૌલા મુર્તઝાલી એ એનાથી બી ઉપર છે. તો 14 તબક લગ કે જે મોમનનું દિલ કેવું છે તો મૌલા ફરમાવે મેં 7 જમીન 7 આસમાનમાં નથી સમાઈ શકતા પણ મોમનના દિલમાં આરામથી રહી શકીએ છીએ. તો એ 14 તબક લગ સુધી જેટલી બી ખુદા તરફથી રહેમતો, નવાજેશો, બરકતો છે, બક્ષિશો છે, એ બધી નિયામતો છે મૌલા તરફથી. પણ એ નિયામત કરતા પણ એનો ધણી મોટો છે. એટલા માટે આપણને મૌલા ફરમાવ્યું કે આ બધી નિયામતોથી તારું દિલ તું વાળી દે. જો પાવેગા વસ્લ હક કા તો એ સબ રહેંગે તેરે તાબેદાર. તો એ જો સુખ દુનિયા ઉકબા કે દુનિયા અને આખરતના સુખથી પોતાને વાળી દે અને જો પાવેગા વસ્લ હક કા તો એ સબ રહેંગે તેરે તાબેદાર. અહીંયા જે હઝરત ઇમામ જાફર સાદિક મૌલાની જે દુઆ છે કે નિયામતો અંદર ઇજાફો કરે, એટલે કે એ નિયામતો એટલી ટોચ સુધી પહોંચી જાય, એટલે કે નિયામતનો આપવાવાળો જે ધણી છે એ નૂરના અંદર હું એક થઈ જાઉં. એ દુઆ આપણી હોવી જોઈએ. યા અલ્લાહ તું મેરે ખુશીઓ में इजाफा कर. તો ખુશી શું છે કે હું કેદખાનામાં કોઈ વખત ખુશી નથી. તમે દુનિયામાં કેદમાં છો ત્યાર સુધી રાજી નહીં થશો. તો અહીંયા જે દુઆ છે એ આઝાદીની છે કે આપણો રૂહ દરેક ચીજોમાંથી આઝાદ થઈ જાય. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તો આ 18 દુઆઓ છે. તો આપણે એને ફરમાન મુબારકથી જીનાનથી સમજવાની કોશિશ કરી. તેમ છતાં પણ જેમનો સવાલ હતો એમને સમજમાં ના આવ્યું હોય અને પૂછવું હોય તો તેઓ મને જે રીતે પૂછે છે ટેસ્ટ કરીને વોઇસમેલ છોડીને રીતે પૂછી શકે છે. બરાબર? થેન્ક યુ. જે ભાઈનો સવાલ છે જે તો એમના ઉર્દુના અંદર ઓલવેઝ એમની રિક્વેસ્ટ હોય છે કે મને તમે ઉર્દુ હિન્દીના અંદર આ ચીજ સમજાવજો. એક મિનિટ. हेलो आवाज આવે છે મારો ઉપર? हेलो जी भाई आ रहा है. तो ये भाई का जो सवाल है उन्होंने उर्दू में सवाल पूछा है. तो मेरे पास जो फरमान मुबारक है वो गुजराती में है तो मैं गुजराती में पहले पढ़ूंगा. तो लगभग 9 फरमान मुबारक है. 2 चीज पे उन्होंने सवाल पूछे है. तो बैतुल ख्याल के जो प्रमोशन की बात है और नक्श की बात है. तो 9 फरमान मुबारक में तकरीबन 21 पैराग्राफ है फरमान मुबारक मेरे पास. तो शायद आज पूरे तो नहीं पढ़े जाएंगे. तो मैं कोशिश करूंगा 15-20 मिनट तक वो जितने भी पढ़े जाएंगे उसकी समझ देने के लिए, और बाद में हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे. तो मालूम पड़ता है कि 2-3 वाइज इसमें जाएगी.
तो मैं वैसे भी बैतुल ख्याल के फरमान मुबारक की वाइज की सीरीज शुरू करने वाला था, तो इसको भी हम बैतुल ख्याल के मेरे पहले 2 वाइज है बैतुल ख्याल के ऊपर, तो इसको हम बैतुल ख्याल की नए सर से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है तो उसमें इसको हम पहला वाइज समझे। तो ये भाई के जो बैतुल ख्याल के बारे में, नक्श और प्रमोशन के बारे में, तो पहले उन्होंने एक इंग्लिश में फरमान मुबारक भेजा है, तो जरा हम उसको पढ़ लेंगे। अच्छा, मैं बैतुल ख्याल के बारे में बोलता हूँ तो शायद लोगों को, मुझे जो पहले से सुन रहे 4.5 साल से, उनको थोड़ा ताज्जुबी लगती होगी। तो देखो, जो मौला ने प्रैक्टिस में करीम हाजरी इमाम का फरमान मुबारक के हमारे मजहब के प्रैक्टिस में क्या है, तो मौला ने फरमाया तस्बीह है, बैतुल ख्याल की बनगी है और जिनान कसीदा है, यानी इल्म मुबारक है। मौला फरमान मुबारक तो फरमा रहे हैं। तो इस मजहब की जो सारी चीजें, उसके अंदर मौला ने फरमाया कि मर्तबा इल्म केरा सब हुनर पर है आला। तो वो हमने इल्म के अंदर भी अभी जो फरामीन फरमाए जाते हैं उसमें आपके रूह को नजात मिले वो पढ़ो। तो वो जो 313 फरमान मुबारक, रूहानी रोशनी, रूहानी राज, 33.5 कलाम और कलाम इमाम मुबीन पार्ट 1 के 8 रूहानी फरामीन मुबारक, उसका हमने 2 बार हमने होमवर्क किया, राइट। तो अभी हम जो पहले से हमारे साथ कनेक्टेड है और नए लोग भी आ रहे हैं, तो उनके भी क्वेश्चन है, राइट। तो जैसे मौला ने फरमाया कि आप भी फना फिल्ला हो, तो मौला सबको चाहता है कि फना फिल्ला हो, लेकिन नीचे नीचे उतरते उतरते मौला ने लास्ट में फरमाया कि आप 1 इंच 1 कदम भी आगे बढ़ोगे तो हम आपके लिए फायदा समझेंगे। तो दूसरी भी मजहब के अंदर प्रैक्टिस है, तो उसके लिए भी लोगों के सवाल है। तो जैसे मौला ने ये सारे फरमान मुबारक फरमाए, रूहानी समझन के फरमान मुबारक, वही मौला ने हमको बैतुल ख्याल के फरमान मुबारक भी फरमाए हैं। और तस्बीह के बारे में भी मौला ने फरमान मुबारक फरमाए कि आपको एक लम्हा, 1 मिनट, 1 सेकंड मिले तो आप तस्बीह लो, या अली, या मोहम्मद, या अल्लाह, पाक इमामों के नाम पढ़ो। तो अगर हम अपने आप को सच्चे दिल से मिशनरी समझते हैं, जैसे 48 में जोमे में मौला ने हमको सर्टिफिकेट दिया कि हर पंजे भाई मेरा मिशनरी है, और 49 में जोमे में मौला ने हमको सर्टिफिकेट दिया कि आप सब मेरे दाई हो, और मौला ने बताया कि दाई क्या करते हैं, राइट। तो मेरे फरमान मुबारक जमात तक पहुंचाते हैं, राइट। तो हम अगर अपने आप को सच्चे दिल से मिशनरी समझते हैं, तो जैसे काउंसिल और तरीका बोर्ड से मिशनरी साहब आते हैं और बैतुल ख्याल के मेंबरों को जो वाइज फरमाते हैं, तो वही बात हमारे लिए भी हो गई, राइट। तो वही ध्यान में रख के मैं ये सब बैतुल ख्याल के बारे में भी बोल रहा हूँ, राइट। तो ये भाई ने जो फरमान मुबारक भेजा है, तो लंदन का फरमान मुबारक है और 1994 का है बैतुल ख्याल का। तो इंग्लिश में मुझे भेजा है। तो फॉर मेनी डेकेड्स मुरीद इन द जमात यूज्ड टू हैव नक्श एंड दे यूज्ड टू हैव ए बोल। तो कई सदियों से मुरीदों के पास नक्श भी होता था और बोल भी होता था। तो मैंने लास्ट माइल में बताया था कि नक्श और बोल क्या है। बोल तो समझो हमको मौला ने दिया है कि या अली हमारा बोल है, बराबर, उसका हमको कि पहले जमाने में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो समझो कि मौला उनको बोल देते थे या अली, तो उनको ध्यान लगाने में आसानी हो गए तो नक्श भी देते थे, लेकिन लोग पढ़ना नहीं जानते थे, तो उनको समझो कि नक्श दिया जाता था सूरज का, सन, या मून, चांद का, या कोई फ्लावर का, गुलाब का फूल, इस तरह नक्श दिया जाता था। तो या अली का जिक्र करते थे, और जो नक्श दिया गया है उसको नजर के सामने रखते थे, आंखों बंद करे तभी। दूसरा नक्श की मायना ये है कि अभी हम आगे फरमान काफी है तो हम पढ़ेंगे, 9 फरमान है और लगभग 21 पैराग्राफ है फरमान मुबारक है, उसमें काफी जिक्र आएगा नक्श का और प्रमोशन का भी। तो वहां भी मौला ने फरमाया कि एक जगह पे मौला ने फरमाया कि हमने आपको बोल दिया है,
और हम आपको नक्श नहीं देते क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि इस बोल को किस तरह लिखा जाए। तो वो टाइम पे जितने भी हाजिर मुरीद थे जो बोल लेने आए थे वो सब पढ़ना लिखना जानते थे, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, हिंदी, फारसी या कोई भी लैंग्वेज में, बराबर। तो मौला ने फरमाया कि हम आपको नक्श नहीं देते क्योंकि आप जानते हो कि इस बोल को किस तरह लिखा जाए। और एक जगह पे मौला ने ये भी फरमाया कि नक्श इसलिए कि कई लोगों को सिर्फ बोल का जिक्र करके ध्यान लगाने में मुश्किल ही होती है, उनको सामने कुछ चीज चाहिए। तो जैसे हमारा बोल या अली है, तो उसका नक्श ये है कि वो या अली को हमारी मादरी जबान में कैसे लिखा जाता है, हमारी मोस्ट कंफर्टेबल लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है। या अली गुजराती, उर्दू, हिंदी, फारसी, इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, वो जब हम आंखें बंद करते हैं तो वो नक्श हमारे सामने होता है। जैसे गुजराती में या अली कैसे लिखते हैं तो हमको ध्यान लगाने में आसानी होती है, इसलिए मौला नक्श देते हैं। और भी एक बात जानने में आई है कि करीम हाजरी इमाम के जो में पहले नक्श ना अरबिक में लिखा जाता था, लेकिन लोग अरबिक में दिया जाता था नक्श। जैसे या अली मौला ने बोल दिया, लेकिन या अली अरबिक में कैसे लिखा जाता है, तो लोगों को उसमें मुश्किल ही होती थी क्योंकि अरबिक न जानने की वजह से, राइट। तो अभी तो मौला ने फरमाया कि आप सब लोग जानते हो। तो मौला ने जब फरमाया सब लोग जानते हो, तो उसके अंदर गुजराती, हिंदी, उर्दू, फारसी, इंग्लिश सब अलग अलग भाषा जानने वाले, लैंग्वेज जानने वाले बैठे हैं, राइट। तो कहने का मतलब आप जो अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में इस बोल को कैसे लिखा जाए वो आपका नक्श है, बराबर। तो यहाँ जो भाई ने फरमान मुबारक भेजा है कि फॉर मेनी डेकेड्स मुरीद इन द जमात यूज्ड टू हैव नक्श एंड दे यूज्ड टू हैव ए बोल। तो काफी सदियों से मुरीदों के पास नक्श और बोल दोनों होते थे। I no longer give the naqsh for the first stage। तो यहाँ मौला ने जो ये 1994 का बैतुल ख्याल का लंदन का फरमान है, तो वहां मौला ने फरमाया कि मैं अभी नक्श नहीं देता हूँ पहले स्टेज में, राइट। लेकिन शायद हम आगे फरामीन पढ़ेंगे तो 1994 के बाद के फरामीन मुबारक ने अंदर हमको जानने में आएगा कि मौला ने नक्श दिया है कि नहीं दिया है, बराबर। तो अभी फिलहाल ये फरमान मुबारक की हम बात करें तो यहाँ मौला फरमाते कि पहले स्टेज में हम नहीं देंगे, राइट। लेकिन अभी हम श्योर नहीं है कि 94 के बाद मौला ने पहले स्टेज में नक्श दिया कि नहीं दिया। ओके, शायद और स्टेजों में दिया हुआ है, राइट। तो मौला जो फरमाते हैं मौला उसमें फेरफार कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक दाखला पढ़ा था कि एक जन को इंडिया के अंदर मौला ने लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनाया था, राइट। लेकिन उनसे कुछ गलती हो गई तो मौला ने खुद बोला था कि यू आर माई लाइफ टाइम प्रेसिडेंट, जब तक तू जिएगा तब तू ही प्रेसिडेंट रहेगा। लेकिन उन्होंने वो जवाबदारी बराबर नहीं निभाई, तो मौला ने बोला है कि तुम रिजाइन करो। तो उसने मौला को अर्ज की कि खुदाविन आपने ही फरमाया था कि मुझे लाइफ टाइम, मौला का हाँ हमने बताया था, लेकिन अभी हम ही बोलते हैं कि तुम रिजाइन करो। तो मौला का कोई भी चीज में फेरफार कर सकते हैं, बराबर। Therefore you need to remember only the bowl that I will give you। तो यहाँ मौला फरमाते हैं कि शायद वो फर्स्ट स्टेज वाले सब लोग थे और मौला ने फरमाया कि हम आपको नक्श नहीं देते पहले स्टेज में, तो आप जो बोल देता है उसको ही आप याद करो। एंड रिमेंबर दैट द बोल इज ए सिंबल। और मौला ने फरमाया कि जो बोल मैं आपको देता हूँ, समझो कि या अली दिया, तो एक सिंबल है वो। तो सिंबल के जो पीछे चीज है, जिसका जो ओरिजिन है, उसका बातून है, वो ज्यादा अहम है। जैसे मौला ने फरमाया बोल और बोल की मायना पे ध्यान दो। तो जो सबसे बालातर है, जो इंसानी अक्ल से भी बालातर है, और हम यूनिवर्स की बात करें तो मौला ने फरमाया कि अगर आप 2000 यूनिवर्स की भी बात करते हो तो खुदा उससे भी बालातर है। और आप स्ट्रेंथ की बात करो, शक्ति की बात करो, तो कोई भी शक्ति से भी अल्लाह बालातर है। तो वो जो मौला मुर्तजाली का नूर है, जो
ना निरंजन निराकार है, वो सिंबल के ऊपर की बात है, राइट? इट इज एन एक्सेस पॉइंट इन योर सर्च, बट इट इज ए सिंबल. तो ये एक्सेस है, यानी थ्रू, उसके थ्रू, ये बोल के थ्रू, जैसे हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद साहब ने मौला ने फरमाया कि ये जाप है वो नूर को देखने के लिए. तो जाप अलग चीज है और नूर अलग चीज है. तो जाप है वहां जरिया है, उसके थ्रू नूर को देखना है जो नूर निरंजन निराकार है. Seek through the light and the name of Hazrat Ali to come close to He who is above all else. तो यहाँ मौला ने दो चीजें बताई. एक तो बोल के द्वारा हम वो नूर को, जो हजरत अली का नाम है, मौला मुर्तजा अली का नाम है, उसका जो नूर है, उसके करीब जो, उसके बारे में मौला ने फरमाया हु इज अबव ऑल. तो ये फरमान मुबारक के अंदर भी अली ही अल्लाह है, ऐसा मौला ने फरमाया. एक तो मौला मुर्तजा अली के करीब आने की बात है, और मौला ने फरमाया उसकी मायना के वो जो सबसे बालातर है, यानी नूर जो निरंजन निराकार है, अल्लाह खुदा है, बराबर. तो यहाँ दो चीजें बताई कि सीक थ्रू द लाइट एंड द नेम ऑफ हजरत अली. एक तो बोल है मौला के मुबारक नाम का, और लाइट, वो दोनों के द्वारा आप जो अल्लाह सबसे बालातर है उसके करीब पहुंचने की बात है. तो जैसे कि हमने हजार फरमान मुबारक के अंदर मौला ने फरमाया कि आपको ज्यादा रोशनी हासिल होगी, ज्यादा समझ हासिल होगी. तो समझ है जो मजहब का बातुन है वो रोशनी है, लेकिन उसमें भी कम ज्यादा है, राइट? तो लाइट के अंदर भी मौला ने फरमाया एक बार हो सकता है, 2 बार 3 बार हो सकता है. ओके, जब तक उसमें फना ना हो, एक ना हो जावे, सिर्फ लाइट रूहानी रोशनी रह जावे, नूर जो निरंजन निराकार है, जब तक वो हालत हम हासिल नहीं करते, तब तक लाइट के थ्रू भी जो भी रोशनी हमने आज तक हासिल की है, कम या ज्यादा, लेकिन अभी भी हमारी हयाती है, हमारी खुदी है, तो वो मौला का मुबारक नाम और लाइट के जरिए जो भी रोशनी हमने आज तक हासिल की है, तो इल्म भी नूर है, वो भी लाइट है, रोशनी है. हमारे फरमान मक्फी वो आपके लिए रोशनी है. उसके जरिए इल्म से तो रब पहचाना, तो जो नूर निरंजन निराकार है, जो सबसे बालातर है, उसके करीब पहुंचना है और नूर में फना होना है, एक होना है. लेकिन ये भाई का जो सवाल है, तो उन्होंने अंडरलाइन किया है फर्स्ट स्टेज. तो शायद उनको पूछने का ये है कि मौला पहले स्टेज में कभी भी नक्श नहीं देते. तो हाँ, ये फरमान मुबारक की मायना ये है. हम अभी दूसरे बाकी फरमान मुबारक के बारे में नहीं बोलते हैं, लेकिन पर्टिकुलर ये फरमान मुबारक के बारे में मौला ने फरमाया कि हम पहले स्टेज में, अभी फिलहाल तो हम पहले स्टेज के अंदर नक्श नहीं देते. तो इसकी मायना ये भी हो सकती है कि और भी स्टेजों के अंदर हम नक्श दे सकते हैं, बराबर. तो ये फरमान जो भाई का है काफी डिफिकल्ट है इसको समझना और समझाना भी. मौला हमको ये सद्बुद्धि इनायत करे कि हम इसको अच्छी तरह समझ सके और समझा भी सके, राइट? तो अभी हमारे पास और 10-15 मिनट हम देखेंगे दूसरे फरामिक मुबारक, प्रमोशन और नक्श के बारे में. उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और बाद में हम क्वेश्चन आंसर की सेशन रखेंगे. तो मेरे पास डायमंड जुबली के बैतुल ख्याल के फरामिन मुबारक है. सबसे अहम बात यह है कि बैतुल ख्याल के मेंबर हैं और उनको अच्छी तरह बैतुल ख्याल की बंदी करनी है, और उसके बारे में उनको जो सवाल है और मौला ने उसके जो फरामीन फरमाए, तो उसमें हम फोकस करके उसको अच्छी तरह समझ सके और हमारा रास्ता आसान हो जाए, वही हमारा इंटेंशन है. तो हम इंटेंशन के ऊपर ध्यान देवे कि इंटेंशन क्या है. तो 19 मार्च 2018 का ह्यूस्टन टेक्सास का
प्रमोशन का मौला का फरमान मुबारक के कुछ पॉइंट है, तो हम उसको समझने की कोशिश करें। तो मौला ने वो प्रमोशन की मुलाकात में मौला ने फरमाया, अभी हम दो बात साथ में समझने की कोशिश करते हैं। प्रमोशन के फरमान मुबारक भी आएगा और नक्श के भी आएंगे। तो गुजरात में मैं पढ़ता हूँ कि हमारा वहाला रूहानी बचाओ, આટલી મોટી સંખ્યામાં પ્રમોશન માટે આવેલી જમાતને જોઈ અમને ગર્વ અને આનંદ થાય છે। तो मौला ने फरमाया कि मेरे प्यारे रूहानी बच्चों, इतनी बड़ी तादाद में प्रमोशन के लिए बैतुल ख्याल की बंदगी का जो प्रमोशन के लिए जमात आई है, वो देख के हमको बड़ा फक्र और खुशी महसूस होती है। आगे मौला ने फरमाया कि प्रमोशन के लिए आपको मुबारकबाद देते हैं, और मौला ने फरमाया खाना बदान खाना बदान खाना बदान। एटलांटा यूएसए का 16 मार्च 2018 का प्रमोशन का फरमान मुबारक है। तो मौला फरमाते हैं कि मैं गुजराती में पहले पढ़ता हूँ। इमाम देखी જ રીતે ઘણા ઘણા खुश હતા। ये पॉइंट है कि जब मौला पधारे तो प्रमोशन के, तो मौला बहुत खुश थे। और मौला ने ફરમાયું તેમની સામે આટલા બધા રૂહાની બચ્ચાઓને પ્રમોશન માટે આવેલા જોઈને કેટલા ખુશ થયા છે। तो मौला ने फरमाया था कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे प्रमोशन के, रूहानी बच्चे प्रमोशन के लिए आए, वो देख के हम खुश हुए। इमामे ભારપૂર્વક ફરમાયું કે જે ફરમાન તેઓ ફરમાવશે તે ઘણું અગત્યનું છે। इमाम जमात ने जे कहवा मांगे थे तेने समझवानी कोशिश करो। तो मौला ने फरमाया कि मैं जो फरमान फरमाऊंगा बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अहम है, और मैं चाहता हूं कि जमात इसको अच्छी तरह समझे। સૌથી પહેલા તો આટલા બધા મુરીદોને પ્રમોશન માટે આવેલા જોઈને અમે અત્યંત ખુશ છીએ, તે ઘણું ઉત્તમ છે। तो मौला ने तभी फरमाया था कि इतनी बड़ी तादाद में मुरीदों को प्रमोशन के लिए आए, वो देख के हम बहुत ही खुश है, और ये बहुत ही उम्दा है। तो देखो, प्रमोशन के लिए जब बुलाया जाता है, तो जब हमने पहली दफा बोल लिया, उसके बाद मौला पधारे, तो ये कहा जाता है कि आज तक जब पहला बोल लिया और अभी तक हमने बराबर रेगुलर इबादत बंदगी की है, वही प्रमोशन के लिए आए, राइट। लेकिन हमारे जानने में भी आया था कि कई लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की थी फिर भी गए थे, राइट। तो उसके बारे में भी फरमान मुबारक आएंगे आगे। लेकिन एक्चुअली प्रमोशन उनके लिए है कि जिन्होंने पहली दफा बोल लिया और बराबर इबादत बंदगी की है, उनको ही प्रमोशन के लिए जाना चाहिए। और एक बार प्रमोशन मिला और समझो कि उसके बाद भी प्रमोशन के लिए मौला जाहिर में पधारते हैं, तो उनको ही जाना चाहिए कि जब दोबारा दूसरा बोल लिया और तीसरी बार मौला ने प्रमोशन देने के लिए मौला दोबारा पधारे, तो जो दोबारा जिन्होंने बराबर प्रैक्टिस की रेगुलर, उनको जाना चाहिए। और बातून में तो मौला कभी भी प्रमोशन हमको बातून में दे सकते हैं, बराबर। तो यही फरमान मुबारक के अंदर मौला ने फरमाया। तो ये प्रमोशन के बारे में जहां भी आप फरमान सुनने में आएगा, तो वहां मौला ने ज्यादातर यही देखने में आया है कि मौला ने फरमाया कि मिशनरी मेरी ओर से आपको प्रमोशन के बोल देंगे। तो ये भाई का जो इंग्लिश में फरमान मुबारक भेजा है और स्टेज के बारे में बताया कि कितने स्टेज है, तो पर्टिकुलर ऐसा कोई बैतुल काल का फरमान मुबारक सुनने में नहीं आया है पढ़ने में कि पर्टिकुलर इतने स्टेज है, कि 15 है, कि 20, के 50, के 100 है, राइट। लेकिन हम फरमान मुबारक में पढ़े तो मौला ने फरमाया कि जिनना काम में 1000 पायरीઓ છે, जिनके काम में 1000 स्टेप्स है। तो एक दो पायरी चढ़े, एक दो स्टेप चढ़े तो क्या फायदा। तो यहाँ है एक चीज मौला के फरमान से हमको जानने मिलती है कि स्टेज है, एक से ज्यादा है। जैसे ये फरमान मुबारक के अंदर मौला ने फरमाया कि मिशनरी प्रमोशन के जो अलग अलग स्टेज वाले हैं, डिफरेंट स्टेज वाले प्रमोशन वाले हैं, उनको मिशनरी बोल देंगे। तो कहने के मतलब कि वो वहां पे ऐसे लोग थे जो डिफरेंट स्टेज वाले प्रमोशन वाले थे, यानी जो पहली मर्तबा प्रमोशन लेने वाले आए वो थे, या दोबारा तीसरी या चौथी बार प्रमोशन लेने वाले आए थे वो भी थे, बराबर। इसलिए मौला ने फरमाया कि यहाँ
प्रमोशन के डिफरेंट डिफरेंट स्टेज वाले लोग हैं तो मिशनरी उनको बोल देंगे, बराबर। जैसे कि एक भाई मुझे मिले थे और उन्होंने कहा था कि हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद साहब ने एक जन को 30 या 35 बार प्रमोशन दिया, पर्टिकुलर एक जन को, और जब लास्ट में मौला ने प्रमोशन दिया तो मौला ने फरमाया वल्लाह कि आज हमने तुमको जो प्रमोशन दिया है तो नया बोल दिया है, तो मौला ने फरमाया हमने तुमको रसूलुल्लाह का नूर दे दिया, हजरत नबी मोहम्मद मुस्तफा का नूर दे दिया। ઇમામે ફરીથી ફરમાયું કે તેઓ આટલા બધા મુરીદોના ही પ્રમોશન માટે આવેલા જોઈને અમે ઘણા ખુશ થયા છે। दोबारा मौला ने फरमाया कि मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में मुरीद प्रमोशन के लिए आए। તમો અહીં પ્રમોશન માટે છો, તેથી મિશનરીઓ તમને કહેશે કે કયા કયા પ્રમોશન છે જે અમે તમને આપીશું। तो यहाँ मौला ने फरमाया कि आप सब लोग यहाँ प्रमोशन के लिए हो, तो वहाँ जो जमात थी वो सारी प्रमोशन के लिए थी, और मौला ने फरमाया कि आप यहाँ प्रमोशन के लिए हो, तो मिशनरी जो है मेरे वो कहेंगे कि आप क्या क्या प्रमोशन है जो हम आपको देंगे, बराबर। तो मौला की ओर से मिशनरी सब डिफरेंट डिफरेंट स्टेज वाले प्रमोशन वाले हैं, उनको प्रमोशन में क्या क्या है वो देंगे। तो क्या देंगे, तो मौला ने आगे ही बता दिया कि मिशनरी जो है मेरे वो प्रमोशन के जुदे जुदे स्टेज वाले को बोल देंगे। तो हर सब प्रमोशन वाले थे लेकिन सबका स्टेज अलग है, तो ये फरमान मुबारक से मालूम नहीं पड़ता है कि डिफरेंट स्टेज वाले पे डिफरेंट मौला बोल अता करते हैं। ઇમામે ફરીથી જમાતને પ્રમોશન માટે ખાસ દુઆ આશીષો ફરમાવ્યા। અબો તમને મુબારકી આપીએ છીએ, અબો તમને વધુ સફળતા માટે દુઆ આશીષો ફરમાવીએ છીએ। ખાના વદાન ખાના વદાન ખાના વદાન। तो मौला ने ये मुलाकात के अंदर मौला ने फरमाया कि आप सबको मैं प्रमोशन के लिए बहुत दुआ आशीष फरमाता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ, और आप कामयाब हो उसके लिए भी मैं दुआएं फरमाता हूँ। और मौला ने फरमाया खाना वदान खाना वदान खाना वदान। तो अब अभी तो अभी हमने 5 ही पैराग्राफ पढ़े हैं, तो अभी और भी 15 से 16 पैराग्राफ और भी है ये प्रमोशन और नफ्स के बारे में। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फ्राइडे की इल्म मजालिस में उसको पढ़ेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर जो भाई ने सवाल पूछे वो लाइन पे हो तो वो भी बात कर सकते हैं, लेकिन उनका टाइम डिफरेंट है तो शायद नहीं होंगे। लेकिन वो मेरी आज की वाइज सुने और उनको अभी आगे भी वाइज कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह, 2-3 वाइज इस पे और होगी। तो जो भाई ने सवाल पूछा था वो भी दोबारा अभी हाजिर तो पूछ सकते हैं, और बाद में भी मुझे वॉइस मेल टेक्स्ट जैसे भी वो पूछ रहे हैं वैसे पूछ सकते हैं। અને આજે જે હાજર છે જે લોકો ઇલમ મિજાલિસમાં ઓનલાઈન એ લોકો આજની વાઇઝ માટે તો જેટલું બી અનાઉન્સમેન્ટ થયું સ્ટાર્ટિંગ થી પ્રસ્તાવના વંચાણી અને અનાઉન્સમેન્ટ થયા એ પછી રેતુઈનો પાઠ વંચાણો અને જે હઝરત ઇમામ જાફર સાદિકની મૌલાની દુઆઓ હતી એ સમજાવવામાં આવી, અને બેતુલ ફેલના મુબારકના ફરમાન આપણે વાંચ્યા અને સમજાવવામાં આવ્યા। એ બારાના અંદર અથવા મારી આગળની કોઈ બી વાઇઝો માટે આપણા ઇસ્માઇલી મઝહબ માટે ખાસ કરીને આજની વાઇઝ માટે તો સાંભળવાળા બીજા બી બરાબર કોન્સન્ટ્રેટ કરી શકે। તો કોઈને બી મારી સાથે વાત કરવી હોય તો પોતાના ફોનના અંદર 2 વાર સ્ટાર ક્લિક કરીને પોતાનું ફોન ઓપન કરીને મારા સાથે વાત કરી શકે છે। તો તમારા ફોન પર જે કીપેડ છે એના અંદર 7 જે છે એના નીચે સ્ટાર છે, એને 2 વાર તમે ક્લિક કરશો તો તમારો ફોન અનમ્યુટ થશે, ખુલી જશે અને તમે મારી સાથે વાત કરી શકો છો। તો હું જોઈ રહ્યો છું કોઈ જેને કદી મારી સાથે વાત ના કરી એવા લોકો આગળ આવે તો સારું વધારે। રૂબીનાબેન કરેડિયા છે, પછી નવાઝ અલી છે, એસ હિરાની। તો ઘણી વખતે નંબર નામ ફેમિલીના કોઈ બીજા નામ બતાવે છે અને આપણે કઈ બીજા હોય છે, પણ જે બી છે
હુસૈન છગાની, સલીમ કનાની, બુધવાની શાન, તો એ લોકો સાથે મેં વાત નથી કરી એવું લાગે છે મને. સઈદ ખોજા, તો અત્યારે જે બી લાઈન પર છે મારી સાથે કદી બી વાત ના કરી હોય અને વાત કરવા માંગતા હોય તો પહેલા હું એમને મોકો આપું છું. અને તો પછી શેમીનબેન છે, તો શેમીનબેન કેલગરીથી તમે વાત કરવા માંગો છો? તમે 2 વાર સ્ટાર કરીને તમારો ફોન અનમ્યુટ કરી શકો છો, મારી સાથે વાત કરી શકો, અથવા બીજું કોઈ પણ હોય તો વાત કરી શકે છે. આપણે થોડું ઘરે અભ્યાસ કરીએ, બરાબર વાયજો સાંભળીએ, અભ્યાસ કરીએ, કારણ કે જયારે પૂછવામાં આવે છે તો કોઈ લાઈન પર આવતું નથી, તો પછી એવું ના થાય કે પછી આપણે આ ક્વેશ્ચન આન્સર બંધ કરી દેવા પડે જે ટાઈમ. જલાલુભાઈ તમે વાત કરવા માંગો છો એટલાન્ટાથી, યા નસરીનબેન એટલાન્ટાથી? વાંધો નહીં, હજી આપણા પાસે 25 મિનિટ છે વાત કરવી હોય તો, હમણાં કે પછી, પણ અત્યારે કોઈ વાત કરવા નથી તો નસરીનબેન એટલાન્ટા વાળા કે જલાલુભાઈ એટલાન્ટા વાળા વાત કરી શકે છે. સોરી, આજે નથી, મારી તબિયત બરાબર નથી હમણાં, તો નેક્સ્ટ ટાઈમ. ઓકે, હા વાંધો નહીં, બોલા તમે સારી તંદુરસ્તી આપે, મુશ્કેલ આસાન કરે. તો નસરીનબેન એટલાન્ટા વાળા વાત કરવા માંગે છે તો વાત કરી શકું છું. नसीम मैंने आपका फोन अनम्यूट किया है, आप बात करना चाहोगे? ये अली मदद करीम भाई। मौला अली मदद, कैसे हो आप? तो शुक्र मौला, आप कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कंफर्टेबल हो बात करने के लिए? हाँ हाँ सही है। अच्छा, तो आप कोशिश कर रहे थे आपका फोन अनम्यूट करने के लिए? हाँ मैं कब से कर रही हूँ, लेकिन क्या करता मैं मालूम नहीं कि होता ही नहीं है कभी भी। तो अभी दोबारा मैं ही कर दूंगा, मेरे लिए आसान है, तो मैं ही कर दूंगा और आपको पूछ लूंगा, तो आप कोई बात करने का रेडी हो तो हाँ बोल देना, नहीं तो वापस उसको हम म्यूट कर देंगे। हाँ बोलिए। जी शुक्र मौला, सॉरी दिक्कत के लिए, तो सॉरी। नहीं तो मेरे को पूछना ये था कि मेरे जहन में एक दो सवाल, मतलब एक सवाल पहले से ही मतलब है कि, और फिर आज आप इमाम जाफर सादिक का भी फरमान समझाए। तो एक मौला मुर्तजा अली का फरमान है कि खुदा छू खुदाया, तो और वो, और फिर ये जब इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि खुदा मेरे मतलब हमें ऐसा नूर भर दे, तो जब इमाम खुद खुदा है तो फिर वो किससे मतलब क्या किससे मांग रहे हैं, तो फिर वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन। बराबर। तो देखो, तो इमाम, पहले तो हमारा ये ईमान होना चाहिए कि इमाम ही खुदा है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये जो ईमान है कि इमाम ही खुदा है, तो इमाम कौन है? तो हर इमाम मौला मुर्तजा अली है, यानी मौला मुर्तजा अली से लेके करीम हाजिर इमाम तक उन पर 49 इमाम है हमारे, राइट? और उसके भी पहले मौला मुर्तजा अली के पहले भी 48वें जुम्मे में हजरत इमाम आका सुल्तान ने फरमाया कि मौला मुर्तजा अली बातून में थे, राइट? तो मौला बातून में इमाम थे, और हजरत आदम के टाइम पे शीश, बाद में शीश शाम, और हजरत नूह पैगंबर के टाइम पे शाम, और हजरत मूसा के टाइम पर हजरत हारून, हजरत ईसा के टाइम पे समून सफा, और हजरत इब्राहिम पैगंबर के टाइम पे हजरत इस्माइल, मौला मुर्तजा अली हजरत रसूलुल्लाह के साथ जाहिर में भी साथ में थे, राइट? तो इमाम तो है, राइट? और वही इमाम सही खुदाविन आलमीन है। तो हमने ये चीज मान ली कि इमाम ही सही खुदाविन आलमीन है,
तो एक तो इंसान तजुर्बे से मानता है, उसको एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, राइट, उससे ये चीज मानता है। लेकिन हमको अगर तजुर्बा नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, और हमने इस्माइली मजहब में जन्म लिया है, और हमारे पास जो इल्म ज्ञान है, या खुदा ने हमको जो अक्ल दी है, हम लॉजिकली भी सोच के वो चीज को मान सकते हैं, राइट। तो हर इमाम मौला मुर्तजाली है, ये मौला का फरमान है। और मौला मुर्तजाली सही खुदाविन आलमीन है, हम गिनान के पाठ पढ़ते हैं, फरमान मुबारक पढ़ते हैं, बराबर। तो इससे हमारा जो मजहब है, अगर हमने एक्सपीरियंस नहीं भी किया, लेकिन वो हमारा मजहब है, शाह पीर को हम मानते हैं, तो शाह इमाम है, मौला के फरमान है, और पीर है वो गिनान है, उसको ध्यान में रख के हम ये चीज मानते हैं, राइट। लेकिन हम लॉजिकली भी सोचे तो दुनिया में कोई भी ये दावा नहीं कर सकता है, राइट, कि ता कयामत मेरी जनरेशन चालू रहेगी। आज तक जितने लोगों भी नहीं दावा किया, उनकी नस्ल खत्म हो गई है, लेकिन मौला का ये दावा है। और हम खोजे इस्माइली को, हमारे गुरु पीर सदरुद्दीन साहब हैं, तो उन्होंने हमको बताया और हमको बताया कि आल अली इस्लाम शाह राजा, तो अली के आल से मेरे टाइम पे जो इमाम है उनका नाम श्री इस्लाम शाह है, और अल्लाह यही इमाम, तो अल्लाह खुद इमाम बन के आया है, राइट। तो ये इल्म ज्ञान से और लॉजिकली के कोई दावा नहीं कर सकता कि ता कयामत मेरी जनरेशन चालू रहेगी, राइट, ओके। तो ये चीजें, और वो नूर हमारे बीच में है, और वो नूर हमको कहता है, मौला जब हमारे बीच पदार्थ है, चलो फरमान मुबारक करीम आज़िम के पहले जितने भी जोमे हो गए, वो फरमान मुबारक या गिनान की हम बात ना करें, लेकिन ये जोमा का जो मौला पदार्थ है, तो मौला फरमाते हैं कि माय बिलो स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, मेरे प्यारे रूहानी बच्चों, तो वो रूह का बाप है, हमारे रूह का बाप है, ऐसा कहता है, राइट। तो खुदा का एक नाम है अल बारी, यानी रूहों का बाप, रूहों को पैदा करने वाला, तो वो खुदा ही है खुद, बराबर। तो पहले तो हमारे दिल में ये शक नहीं होना चाहिए, आप समझे बात को जी। अभी जो खुदा है, जो सबसे बालातर है, जो यूनिवर्स की बात करो और 2000 यूनिवर्स की भी आप बात करो, उससे भी बालातर है। आप स्ट्रेंथ, शक्ति की बात करो, आप फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करो, या आपकी दिमाग की स्ट्रेंथ की बात करो कि कोई इंसान कितना इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, या कोई भी शक्ति स्ट्रेंथ की बात करो, उससे भी बालातर है, सब चीजों से बालातर है, राइट। तो वो जो नूर है, जो सबसे बालातर है, उसको कहते हैं नूर, जो निरंजन निराकार है, उसका कोई शेप नहीं है, वो जाहिरी आंखों से नहीं देखा जाता, कोई कलर नहीं है, रंग नहीं, रूप नहीं, वो लिखा नहीं जाता है, उसका कोई नाम नहीं है। लेकिन हम उसको कैसे पहचान पाते? तो हम उसको पहचान सके, उसलिए वो नूर जो निरंजन निराकार खुदा अल्लाह है, वो खुद 2 रूप लेके आया, अली और नबी का। और नबी मिसाल के पीर पैगंबर का नूर है, वो माँ है, वो बाप की शनाख्त देता है अली। तो खुदा ने अपने नूर से नूर को जुदा किया, उसको नाम दिया मोहम्मद, जो रसूलुल्लाह का नूर है, पीर पैगंबर का नूर है, उसको रहमतुल आलमीन, एक आलिम पे नहीं, सिर्फ मुसलमानों पे नहीं, सब जितने भी आलम है, जितने भी यूनिवर्स है, सब पे रहमत करके भेजा। और वो नूर को बोला कि तू अली की, जो खुदा खुद अली बन के आया, अल्लाह यही इमाम। तो हम पीर पैगंबर को अल्लाह खुदा नहीं कहते, इमाम को अल्लाह खुदा कहते, इमाम के रूह को कहते, उसकी शनाख्त दे, बराबर। तो ये मौला ने फरमाया कि हम अली नबी दोनों के नूर है, तो अली नबी के दोनों के नूर है, वो नूर निरंजन निराकार है, बराबर। तो खुदा ही खुद अली बन के आया, बराबर। अभी जो मौला ऐसा फरमाते हैं, अभी हमको सवाल ये होता है कि मौला, हर इमाम मौला मुर्तजाली है, और खुदा खुद अली बन के आया, और फरमान मुबारक में ये साबित है कि हमारा दादा हजरत मौला मुर्तजाली को मोहम्मद मुशरी अल्लाह कहता था, अली के तो सही अल्लाह कहिए, ये सारी चीजें है। मौला खुद भी फरमाते हैं मेरे प्यारे रूहानी बच्चों, तो फिर मौला क्यों ईशा अल्लाह फरमाते हैं, खुदा अल्लाह फरमाते हैं? तो कुरान में एक आयत है कि खुदा है ना, मच्छर का भी एग्जाम्पल देता है। क्यों देता है? कि इल्म देने को। तो खुदा तो मच्छर का भी एग्जाम्पल दे सकता है, यानी कि छोटे में छोटी चीज से भी
इंशाअल्लाह भी बोले, ना भी बोले, अल्लाह भी बोले। चलो हम इस्माइली की बात करें, कुरान में हजारों आयतें हैं जहां अल्लाह ने ऐसा फरमाया रसूलुल्लाह को कि खुदावंद ताला ने फरमाया है, खुदा ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया है। अगर खुदा चाहता तो ऐसा बोलता ना कि मैंने फरमाया है। तो खुदा खुद वही नाजिल करता है रसूलुल्लाह पे, और खुदा इस तरह फरमाते कि अल्लाह ने फरमाया, खुदा ने फरमाया। इस तरह आयत में नहीं है कि मैंने फरमाया, कई जगह पे ऐसा भी है, राइट। तो हमारा मकसद होनी चाहिए शनाख्त पे, राइट। आप समझे? तो देखो जी अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आ गई बात। तो शुक्र। इमाम देखो, इमाम पीर के जोमे में होते हैं तभी भी फरमा सकते हैं। तो पीर तो इमाम को खुदा अल्लाह कहते हैं, लेकिन हम कई जोमे में हम यहाँ पर भी हमारी सोच को लिमिटेड ना रखें। अगर हम ये समझते हैं कि मौला पीर के जोमे में है तभी ही इंशाअल्लाह फरमा सकते हैं, अल्लाह खुदा फरमा सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम हमारे सामने मौला मुर्तजाली का एग्जांपल है। तो मौला मुर्तजाली कभी पीर के जोमे में नहीं थे। हमारे पहले पीर थे रसूलुल्लाह थे, दूसरे पीर थे मौला मुर्तजाली के बड़े फर्जंद हजरत हसन अलैहिस्सलाम थे। मौला मुर्तजाली कभी भी पीर के जोमे में नहीं थे, इमाम के जोमे में थे, और इमाम का रूही खुदा है। तो इमाम ने मौला मुर्तजाली खुद अपने जोमे में फरमाया। हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद साहब के फरामीन आप पढ़ोगे कलाम इमामुद्दीन पार्ट 1 में, तो वहां ने मौला ने फरमाया कि मुर्तजाली ने फरमाया, राइट, कि मुझे महज की तमा नहीं है, दोजख का डर नहीं है, कि या खुदा मैं तेरी इबादत करता हूँ सिर्फ तेरे इश्क और मोहब्बत से करता हूँ। तो वो तो खुद खुदा है, तो वो किसको खुदा कहता है? उसका मकसद ये है कि आप दोजख के खौफ से या जन्नत की उम्मीद से खुदा की इबादत मत करो, आप खुदा के इश्क और मोहब्बत से करो। मकसद ये है। और ये जो फरामीन है ना, जो पॉकेट वाली बुक जो सिंधी खोज की लैंग्वेज के अंदर है, खोज की, उसके अंदर ये फरामीन मुबारक है कि एक दिन मौला मुर्तजाली ने नमाज के वक्त फरमाया कि खुदा छू खुदाया, मुझे बहस की तमा नहीं या और मुझे दोजख का खौफ नहीं, जो दुख मुझे देना है दे, तू मेरे से भलाई करे, अच्छा करे, ऐसा नहीं है, राइट, क्योंकि मैं तेरा आशिक हूँ। तो यहाँ ये फरमान फरमाने का मकसद ये है कि खुदा तो एक ही है, तो फिर मौला मुर्तजाली ने ऐसा क्यों फरमाया कि खुदा छू खुदाया? यानी एक रूहानियत में एक स्टेज आ जाता है, वहां हम अभी खुदा के नूर में एक नहीं हुए, लेकिन हमारी रूह की बुलंदी यहाँ तक पहुंच गई है, हमारा दिल इतना पाक और साफ हो गया है कि हमको ये एहसास होता है कि मेरे और खुदा में कोई जुदाई नहीं है। क्योंकि हमारा रूह है, अलबत्ता इमाम के रूह का, खुदा के नूर का कतरा है, लेकिन इमाम का रूह है वो नूर का दरिया है। हमारा रूह है भले जितना भी पाक हो जावे, लेकिन हमारा रूह एक कतरा है। तो लोटे ग्लास में पानी होता है, उसमें भी H2O है, उसमें भी जो एसेंस है वही है, पानी है, लेकिन समंदर का पानी के सामने लोटे का पानी की कोई वो नहीं है, उसकी बड़ाई नहीं है, राइट। क्योंकि समंदर की पानी से भरा हुआ है, उसकी गहराई है और उसकी बुलंदी कितनी आला है, उसके सामने लोटे पानी की कुछ नहीं है। लेकिन वो लोटे के पानी को समंदर में मिलाया जाए तो वो समंदर का पानी हो जाता है। जैसे साले नूर में क्या हो गया, नूर में मिलके वो खुद नूर हो गया, अभी आप उसको देख नहीं पाओगे। तो ये फरमान मुबारक का ये मकसद है। और लास्ट में मौला ने फरमाया कि मैं तेरा आशिक हूँ। तो जब आशिक की हालत बनती है, पहले रूह की पहचान, रूह का दोस्त, और वो दोस्ती आशिक, देखो माशूक दोस्त कई एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन आशिक एक ही होता है माशूक का। तो जब आशिक की हालत होती है ना, तभी ये बात बनती है, ये जबान पे आ जाए, ये दिल के अंदर, ये पूरा दिल नूर से भर जाता हो कि मेरे में और मौला में कोई जुदाई नहीं है। दूसरे अल्फाजों में मौला ने बताया कि मोहम्मद मुर्शिद क्या रे, कभी भी जुदा नहीं है। अगर आपको जुदा लगता है तो आप अपना दिल मजबूत रखो और ये जुदाई खत्म कर दो। तो दिल मजबूत रखना, या आपके दिल में आप ऐसी बुलंदी हासिल करो रूहानी इश्क की, कि रूहानी इश्क की वजह से सारी जुदाई जल के खाक हो जावे। तो अब आप मेरे लिए मोहब्बत रखते हो, मैं आपके लिए मोहब्बत रखता हूँ, तो आप में और मुझ में कोई जुदाई नहीं। तो ये जब दिल नूर से रूहानी इश्क से भरपूर हो जाता है ना, तो ये आशिक की बातें बनती है। ये आशिक की, मौला ने लास्ट में फरमाया मैं तेरा आशिक हूँ, ये हकीकत है। तो ये आशिक की हकीकत है, आप समझे। हजरत इमाम आका मुस्तन तिरबिला
भी कैरो में मौला राज करते थे, दुनिया बाने मौला राजा भी थे, अलबत्ता इमाम तो है हमारे। तो वो दरमियान मौला पीर के जोमे में नहीं थे, और मौला ने फरमाया अगर खुदा ने हम पे दुनिया की जवाबदारी न डाली हो तो हम इल्म के अंदर जो लिज्जत और लुफ्त है उसको हासिल करने के लिए हम दुनिया को एक हम उठा के फेंक देते एक साइड में, मौला ने फरमाया। तो मौला तो पीर के जोमे में भी नहीं थे, इमाम के जोमे में थे, फिर भी मौला ने फरमाया कि अगर खुदा ने हमारे पे जवाबदारी ना डाली हो। तो ये फरमान फरमाने का मकसद ये है मौला ने कि आप सब दुनिया की जवाबदारी लेके आए हो, लेकिन अगर आप इल्म के अंदर मेहनत करोगे, इल्म के अंदर जो लिज्जत है लुफ्त है उसको हासिल करने के लिए मेहनत करोगे, तो आप ये दुनिया में रहते हुए ये जवाबदारी को अंजाम देते हुए आपके लिए इतनी हिम्मत आ जाएगी कि आप दुनिया से काफी दूर हट गए होगे। ये मकसद है, बराबर। ये मकसद को हम पकड़े, राइट। देखो मौला खुद फरमाते हैं, फरमान के हमको सब रोशन है। आपने फरमान पढ़ा होगा कलाम मुबीन में 48वें जोमे में, राइट। मौला ने फरमाया हमको सब रोशन है, ओके। और पीरों ने भी फरमाया कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, उसके आगे क्या छुपाना, जिसके हाथ में जन्म मरण की डोरी। लेकिन करीम हाजी इमाम 2006 में हैदराबाद पधारे इंडिया में, तो वहां पे आप वो फरमान मुबारक का पढ़ोगे ना, तो मौला ने फरमाया कि मेरे प्रेसिडेंट या मुखी साहब ने बताया कि कुछ कितने कंट्री के, कुछ 40 के इतने, कुछ मौला ने बताया कि इतने कंट्री के लोग यहाँ मुरीद लोग आए हैं दीदार करने। तो मौला ने हंस के कहा कि ये तो मेरे पास कागज और कलम हो ना तो मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ। उसको सब रोशन है, फिर भी वो ये रमत करता है, क्योंकि हो सकता है जमात के अंदर ऐसे शक वाले हो कि मौला को 40 कंट्री के नाम थोड़े याद होंगे, अस्तगफिरुल्लाह, राइट। अगर हमारा दिल पाक और साफ है तो मौला हमको बताता है कि मुझे सब रोशन है, राइट। अगर किसी को शक है तो मौला रमत भी करता है। और ये रमत है ना, जमाने के हिसाब से जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा ना, तो पीरों ने फरमाया कि जिम जिम कलयुग वास्ते ये कलयुग बढ़ेगा या गुनाह पाप नाफरमानी बढ़ेगी ना, तो मौला अपनी पहचान उतनी छुपाएगा। वो खास अपने मुरीदों की पहचान देगा, सबको पहचान नहीं देगा। तो जू कलिकार वास्ते तिम मारो स्वामी राजो चरित्र करते अपार, वो चरित्र करेगा, वो खेल करेगा, वो सबको अपनी पहचान नहीं देगा। देखो 48वां जुमा था मौला मुर्तजा अली का, हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद साहब का। वहां मौला ने फरमाया कि मैं मेरे मुरीदों को तारने का शौक लेके आया हूँ। तो वहां मौला ने ऐसे बोल्ड फरमान फरमाए हैं। फिर भी हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद से के जुमे के अंदर मौला ने बहुत सारी रमत रमी है। जैसे कि मौला ने फरमाया कि आपका रूह है वो नदी की मिसाल है, और मेरा रूह है वो समंदर है, और आपके रूह का सिरा लास्ट एंड वो मेरे अंदर है, यानी मैं नूर का दरिया हूँ, मैं ही असल मकान हूँ। और वही मौला क्या फरमाता है कि आपके लिए दुनिया कैद खाना है, मेरे लिए जिंदगी कैद खाना है। उससे भी आगे मौला ने फरमाया कि आपको भी असल मकान चाहिए, मुझे भी असल मकान चाहिए। तो ये रमत है। एक बार तो ये बोलता है कि आपका रूह का आखिरी सिरा मेरे अंदर है, मैं ही नूर का दरिया हूँ, और एक तरफ बोलता है कि मुझे भी असल मकान चाहिए। तो ये हमारे रूह की जर्नी है। हमारे लिए जिंदगी भी कैद खाना आता है। मौला ने फरमाया हम बेजार है, तो हम सोचे हमारे लिए कि हमको बेजारी आई ये जिंदगी से, हमारे दिल में वो तलब पैदा हुई मौला के नूर में एक होने की, हमको असल मकान चाहिए। ये हमारे रूह की जर्नी है। ये जर्नी करते 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 हम खुद वो रास्ता पार करते हैं ना, तभी पता चलता है कि देखो इतना बड़ा समंदर है, उसमें बड़े बड़े पहाड़ और जानवर है, वो सब पसार करके हम आपके पास आए हैं, बराबर। ये सारे हमारे लाइफ के अंदर ये सारी चीजें बनती है, ये हमारी रूहानी जर्नी के दरमियान ये सारी चीजें बनती है। तो ईमान पक्का रखो कि करीम हाजरी इमाम ही सही खुदा बिन आलमीन है, यानी मौला का जिस्म मुबारक नहीं, इमाम का जो रूह है वो सही खुदा बिन आलमीन है, वो अल्लाह है, वो खुदा है। वो कुछ भी करे, वो इंशाअल्लाह भी बोले, वो अल्लाह भी बोले, वो खुदा भी बोले। जैसे कि हमारे बीच इस्माइलियों के बीच मौला आते हैं तो मौला फरमाते हैं माय बिलो स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, मेरे प्यारे रूहानी बच्चों, हमारा वाला रूहानी बच्चा हो। मौला 1995 में ताजिकिस्तान गए, 1000 साल के बाद मौला ने जाहिर में दीदार दिए उनकी जमात को।